Welcome to lecture number 17 of the chapter Share Capital, and we are doing topic comprehensive questions excluding pro rata. That means it could be a case of under subscription, full subscription or over subscription, but the money must be refunded, not allotted on pro rata basis. Let's continue with that. कल हमने क्वेश्चन किए थे एक जर्नल और एक जर्नल के साथ बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43. AXN Limited invited applications for issuing 1 lakh equity share of 10 each at a premium of 6 per share. 10 का शेयर 6 का प्रीमियम. So it would be 10 plus 6, 16. Payable 4 on application. 5 which includes 2 premium, that would be 2 plus 2. 5 on allotment, that includes 2 premium, that would be 3 plus 2. And 4 first call, it includes 2 premium, that would be 2 plus 2. And the second final call, 5 plus 4, 9 plus 4, 13. So left with 3, second call. Let's check the total. 2 plus 2 plus 2 premium हो चुका है. 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 0. Obviously लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा और you need not write that. The issue was fully subscribed. That means 1 lakh equity shares. Kumar, the holder of 400 shares, did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his entire share money along with the allotment money. कुमार ने allotment नहीं दी, that means calls in arrear, और रवि ने allotment के साथ call 1 और call 2 दे दी, that means calls in advance. Afterwards, first call was made. Gupta, holder of 300 shares, failed to pay the first call money, and Gopal, holder of 600 shares, paid the second call money along with the first call. Now that's an interesting one. गोपाल ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, कॉल्स इन अरियर गुप्ता ने, और गोपाल ने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दी. गुप्ता शेयर वर forfeited immediately after the first call. Second and final call was made afterwards. The whole amount due on second call was received. The shares were forfeited. Shares forfeit किए गए. All the forfeited shares were reissued. So 2 बार forfeit के बाद फिर सभी shares reissue कर दिए गए. 5 journal entries in the books of the company. 8 mark question it is. Entry number 1, application receive करेंगे. Bank account debit to share application. One lakh shares, 4 each. That would be 4 lakh. अब एप्लीकेशन में ट्रांसफर की जाएगी. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 2 rupees will be transferred to capital and 2 rupees will be transferred to premium, and in totality we have received 4 lakh. Now we will ask for allotment which includes premium of 2. Allotment would be of 5. The entry would be share allotment account debit to equity share capital to security premium reserve.
How much? 1 lakh into 5 lakh. 1 lakh into 3 lakh. 1 lakh into 2 lakh. So we have asked for the allotment. Now we will receive the allotment. Entry number 4. Bank calls in arrear to share allotment to calls in advance. How much we will receive? We have asked for 5 lakh. Amount due 5 lakh minus Kumar, the holder of 400 shares, did not pay the allotment money, minus Kumar. कुमार के पास शेयर्स हैं 400 और उसने 5 की अलॉटमेंट नहीं पे की, मींस उसने 2000 नहीं पे की है. एंड रवि होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी. प्लस पैसे ज्यादा आ गए. किसने पैसे दिए? रवि ने. और रवि के पास शेयर हैं 1000. कितने पैसे उसने ज्यादा दिए? हम अलॉटमेंट पर हैं. उसने 4 + 3 7 रुपीज एडवांस में दे दिए. सो इस टाइम पे उसने ये दोनों पैसे ज्यादा दे दिए. 7 रुपीज उसने ज्यादा दे दिए. दैट वुड बी 7000. दैट वुड बी 5,05,000. सो बैंक में हम 5,05,000 रिसीव करेंगे. कुमार को रिप्रेजेंट कर रहा है 2000, अलॉटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 लाख और कॉल्स इन एडवांस को रिप्रेजेंट कर रहा है 7000. कॉल्स इन एडवांस is open to represent, it's a representative personal account. Calls in advance represents Ravi. Calls in arrear is a representative personal account who represents Kumar. Share allotment represents all the shareholders of the company and bank is the real account. These three are representative personal account that represents the defaulter, the advance person and all the shareholders. Next, fifth question में आगे लिखे कुमार शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है. किसके शेयर फोरफिट करेंगे? कुमार के. तो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. कुमार के पास शेयर्स हैं 400 इंटू जितने पैसे अभी तक मंगवाए हैं एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, द मनी कॉल्ड अप एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम. कंपनी अभी यहां पर है, यहां ब्रेक लग चुकी है. सो इट इज 2 + 3 5. प्रीमियम में आएगा जो मंगवाया पर पे नहीं किया. ये वाला प्रीमियम मंगवाया ही नहीं, ये वाला प्रीमियम मंगवाया पर पे कर दिया. तो वी आर लेफ्ट विद दिस प्रीमियम. मंगवाया पर पे नहीं किया. 400 इंटू 2. कॉल्स इन अरियर में जो टोटलिटी में नहीं पे किया इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, उसने ये 5 रुपए नहीं पे किए टोटलिटी में. 400 इंटू 5 2000. और फोर फीचर में जो उसने पे कर दिया एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, उसने पे किया सिर्फ एप्लीकेशन 4 रुपए की. एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम 2. 400 इंटू 2 800. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड. अब हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे. शेयर कॉल 1 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर्स माइनस करके कॉल मंगवाई जाएगी. टोटल शेयर्स है 1 लाख. 1 लाख में से 400 फोरफिट हो गए तो हमारे पास रह गए 99,600. अगर ये शेयर्स री इशू हो चुके होते, तो बात कुछ और होती. फिर हम यहाँ पे 1 लाख ही लेते अगर फुली पेड अप में री इशू ना होते. तो
बट यहाँ पे फोरफिट हुए हैं शेयर्स, दैट्स इट। दैट मीन्स 400 शेयर्स जो कुमार के थे वो कुमार के पास नहीं है। क्योंकि वो कुमार के पास नहीं है इसलिए हम पैसे नहीं मंगवा सकते उससे। नेक्स्ट कॉल 1 रिसीव की जाएगी। नंबर 7, बैंक कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, to share call 1 to calls in advance। यस, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। ये जो कॉल्स इन एडवांस है ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉल्स इन एडवांस कॉल 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज हाउ, सी जितने पैसे आए जितने पैसे नहीं आए, जितने पैसे इसलिए नहीं आए क्योंकि एडवांस में आ गए थे, जितने पैसे अब हमें एडवांस में आए हैं। सो हमने कॉल 1 में रिसीव करने थे अमाउंट ड्यू 3,98,400 माइनस किसने पैसे नहीं दिए। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड, गुप्ता होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। गुप्ता जी ने पैसे नहीं दिए और गुप्ता जी के पास 300 शेयर हैं, 300 इंटू 4 1200 गुप्ता जी ने नहीं दिए। गोपाल होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। गोपाल ने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। गोपाल के पास शेयर्स हैं 600। कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे उसने, ये देखिए कंपनी यहां पर है, कंपनी अभी यहां पर है, तो कंपनी जो पैसे एडवांस में देगी वो ये वाली, जो गोपाल ने पैसे दिए वो ये एडवांस दिए क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल पे किए। सो 3 रुपीज दैट वुड बी 1800। बट यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी है कि रवि पैसे नहीं देगा क्योंकि रवि पहले ही पैसे दे चुका है। रवि के पास 1000 शेयर्स हैं, वो 7 रुपए पहले दे चुका है। 4 रुपए अभी कैंसिल होंगे, 3 रुपए बाद में कैंसिल होंगे। ये देखिए रवि के पास 1000 शेयर थे, उसने 7 रुपए एडवांस में दिए थे और ये 7 रुपए कौन से थे, 4 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकेंड कॉल। तो ये 4 रुपए हम वो ही माइनस कर रहे हैं जो फर्स्ट कॉल की अब रवि नहीं देगा। सो द नेट अमाउंट वुड बी 3,98,400 में से गुप्ता नहीं पैसे देगा, गोपाल पैसे देगा, रवि पैसे नहीं देगा। टोटल रिसीव करेंगे 3,95,000। बैंक में 3,95,000। कॉल्स इन अरियर में गुप्ता ने पैसे नहीं दिए। कॉल्स इन एडवांस में डेबिट में रवि पैसे नहीं दे रहा। कॉल हमने मंगवाई थी 3,98,400 की और गोपाल ने जो पैसे एक्स्ट्रा दे दिए 1800, वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। इस चीज पे आपने ध्यान देना है कि ये आप कॉल्स इन एडवांस के साथ कॉल्स इन एडवांस कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल 1, कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कॉल 1, और ये कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। सो यू कैन नॉट मर्ज इट कि कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्रेडिट को कैंसिल कर दो। यू कैन नॉट, आई रिपीट, यू कैन नॉट। आगे नेक्स्ट 8th, गुप्ता शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। गुप्ता जी के पैसे शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं। एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। गुप्ता जी के पास 300 शेयर हैं, 300 इंटू 300 इंटू कॉल्ड अप, जितने पैसे अभी तक मंगवाए हैं। कंपनी यहां पे स्टैंड कर रही है, कंपनी स्टैंडिंग राइट हियर, सो हाउ मच इज कॉल्ड अप,
2 + 3 + 2 7, 7 रुपए कॉल्ड अप है, शेयर कैपिटल में आएगा 7। एसपीआर में वो पैसे आते हैं जो मंगवा लिए पर रिसीव नहीं किए। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला प्रीमियम उसने पे कर दिया है, ये वाला प्रीमियम गुप्ता जी ने पे कर दिया, ये वाला प्रीमियम गुप्ता जी ने पे नहीं किया, प्रीमियम मंगवा लिया पर पे नहीं किया, 2 रुपीज। कॉल्स इन अरियर 4 रुपए उसने नहीं पे किए, 1200 रुपए। ये वही कॉल्स इन अरियर है जो डेबिट हुआ था, उसे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया क्योंकि शेयर्स फोरफिट हो गए। और फोर फीचर में बैलेंसिंग फिगर और टेक्निकली उसने जो टोटल पे किया, उसने पे किए 5 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के, एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। 4 रुपए एप्लीकेशन के जिसमें से 2 रुपए, 5 अलॉटमेंट के जिसमें से 3 रुपए। तो दिस 5 रिप्रेजेंट्स 2 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। शेयर्स फोरफिट हो गए, आगे लिखे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड इज आफ्टरवर्ड्स। अब हम सेकेंड कॉल रिसीव करेंगे, पहले ड्यू करेंगे, मंगवाएंगे। शेयर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो शेयर्स फोरफिट हो गए वो माइनस करके 99,600 माइनस 300, 99,300 बेसिकली 700 माइनस हो गए। 400 रुपए कुमार के और 300 रुपए गुप्ता के, 300 शेयर्स into 3 rupees. We'll be asking the call of 3 rupees, the final call of 3 rupees. That makes us 99,300 into the total of 297,900. 99,300 into 3, 297,900. Now we will receive the final call. According to question, कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, so बैंक कॉल्स इन एडवांस जरूर डेबिट होगा टू शेयर फाइनल कॉल। कौन पैसे नहीं देगा? रवि भी पैसे नहीं देगा एंड गोपाल भी पैसे नहीं देगा। आप देख सकते हैं रवि ने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल पे की थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और गोपाल ने 600 शेयर पर फर्स्ट कॉल पर सेकंड कॉल पे कर दी थी। 2 जने पैसे नहीं देंगे। सो वी हैव अमाउंट ड्यू 297,900 माइनस रवि 1000 into 3, 3000 माइनस गोपाल 600 into 3, 1800. Isn't it? 600, 300, right, 1800। रवि के पास 1000 शेयर्स हैं और गुप्ता जी के पास 600 शेयर है, 1600 शेयर्स पर 4800 नहीं आएंगे। हमने मंगवाए 297,900, जिसमें से 3000 रवि के नहीं आए और 1800 गोपाल के नहीं आए। द टोटल अमाउंट वी रिसीव्ड इज 293,100। This calls in advance represents Ravi and Gopal. Now, all the forfeited shares were reissued at 9 per share fully paid up. Reissue इकट्ठी की जा सकती है, forfeit better है अलग अलग करो, reissue इकट्ठा किया जा सकता है। Now let's reissue the shares. Bank share forfeiture to equity share capital। शेयर्स को फोरफिट किया जाएगा। कितने शेयर्स फोरफिट करने हैं? फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा 9 पर शेयर। हाउ मेनी शेयर्स आर फोरफिटेड? वी हैव फोरफिटेड 700 शेयर्स, 400 ऑफ कुमार एंड 300 ऑफ गुप्ता। सो 700 शेयर्स, 700 शेयर्स एट द रेट 9 पर शेयर फुली पेड अप। 700 into 10, 10 का शेयर 9 में रीइश्यू किया जाएगा, 6300 and 7000, 700 रुपए का लॉस। And the last entry would be share forfeiture to capital reserve.
The money will be transferred to capital reserve. The profit will be transferred to capital reserve. The point is how much? How much money will be transferred to capital reserve? Share forfeiture credit minus share forfeiture debit. Share forfeiture credit. शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है 800, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुमार को। फिर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है 1500, जो रिप्रेजेंट कर रहा है गुप्ता को। माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट 700 री इशू के टाइम पे। शेयर फॉरफीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट। यूनिटरी मेथड नहीं लगाएंगे, दिस इज फॉर दिस मच, व्हाट अबाउट दैट मच। रीजन, क्योंकि हमने सारे शेयर्स री इशू किए, पार्शियल री इशू नहीं है। सो 800 minus 700, 100, the net answer is 1600 that will be transferred to capital reserve. This is your 8 marker question. Speed up, note it down. Now I'm giving you 2 minutes to have a look on the complete question. और ये 2 मिनट वीडियो फॉरवर्ड नहीं करनी है, अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन 43, complete the question, read it properly, go through all the entries. 2 minutes for you. Speed up 1 more minute. So let's move to the new question. Question number 42. Dora Limited had an authorized capital of ₹1 crore divided into equity share of 100 each. That would be 1 lakh shares of 100 each. 1 crore we can maximum take from a public. We can subscribe if the public subscribed it. The company offered 84,000 shares to the public at premium. कितना premium mention नहीं है. The amount was payable as 30, 40, 50. Total बन गया 120. That means 20 रुपए का प्रीमियम है. देख सकते हैं 30, 40, 50. टोटल बन गया 120. 20 का प्रीमियम हुआ. So it would be 100 का शेयर, 20 का प्रीमियम 120, 30 on application, 40 on allotment. That would be 20 plus 20 and 50 on call. Final call. Application were received for 80,000 shares under subscription. All sums were duly received except the following. Lakhan, a holder of 200 shares, did not pay the allotment and call money. Paras, a holder of 400 shares, did not pay the call money. Both are defaulters.
The company forfeited the shares of Lakhan and Para. Subsequently, the forfeited shares were issued at 80 per share, fully paid up. Show the entries in cash book and journal. Cash book, that means बैंक की एंट्रीज जर्नल में नहीं आएंगी. कैश बुक, कैश की एंट्रीज जर्नल में नहीं जाएंगी, कैश बुक में जाएंगी. सो दिस इज आवर कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ बैंक कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम नहीं बनाते. एंट्री नंबर 1, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. सो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन यहां नहीं आएगा, यहां आएगा. टू शेयर एप्लीकेशन, $80,000 into 30. $24 lakh. The next entry would be share application to share capital. क्योंकि इस एंट्री में बैंक नहीं है तो ये एंट्री नीचे रिकॉर्ड की जाएगी. शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख. नीचे में जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी एंट्री क्योंकि इसमें बैंक नहीं है. थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR. हियर वी विल रिकॉर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital to security premium reserve. $80,000 into 40, 32 lakh. 80,000 into 20, 16 lakh. And 80,000 into 20, 16 lakh. अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे. एंट्री बनेगी बैंक कॉल्स इन अरियर टू अलॉटमेंट. बैंक कॉल्स इन अरियर टू अलॉटमेंट. सो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट इधर आ जाएगा. वर्किंग नोट 1 एंड थर्ड एंट्री कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट इधर आएगा. How much? Let's see the working note 1. Amount due 32 लाख रुपीस मंगवाए, जिसमें से लखन ने नहीं पे किए और लखन के पास है 200 शेयर्स. 200 into 40, 8,000 नहीं आए तो 31,92,000 आ गए. 32 लाख मंगवाए जिसमें से 8,000 नहीं आए तो 8,000 नहीं आए वो जाएगा कॉल्स इन अरियर में और 31,92,000 जाएगा इधर. नेक्स्ट अब हम फर्स्ट कॉल मंगवाएंगे. एंट्री नंबर 4, share first and final call to equity share capital जो शेयर्स अभी 4 फीट कोई भी नहीं हुए. 4 फीट होते तो माइनस कर देते. 80,000 into 50, 40 लाख. अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे. एंट्री बनेगी बैंक कॉल्स इन अरियर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बैंक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट. सो फिफ्थ एंट्री कॉल्स इन अरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अमाउंट ड्यू
40 lakh minus, there are two defaulters, Lakhan and Paras. लखन के पास है 200 शेयर्स एंड पारस के पास है 400 शेयर्स। 40 लाख में से 30,000 नहीं आएंगे तो आएंगे 39,70,000। So calls in arrear will be shown by 30,000 that represents Lakhan and Paras, and total we have received 39,70,000. So here to share first and final call, working note 2, 39,70,000। हम ये ऐसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें कैश बुक है। कैश बुक मीन्स आधी एंट्री इधर आधी एंट्री उधर। नेक्स्ट, द कंपनी forfeited the shares of लखन एंड पारस। लखन और पारस के शेयर्स forfeit किए जाएंगे। आप हमेशा forfeiture की एंट्री अलग अलग डालें, दैट वुड बी द बेटर थिंग। आप एंट्री अलग अलग ही रिकॉर्ड करें ताकि कल को रीइश्यू जब पार्शियल हो तो डिफिकल्टी ना रहे। तो अब हम लखन के शेयर्स forfeit करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture। 200 into fully called up, 20 का प्रीमियम लखन ने नहीं पे किया। लखन ने पे नहीं की अलॉटमेंट एंड कॉल, और उसने पे की है सिर्फ एप्लीकेशन। सो इट रिप्रेजेंट्स फुली कॉल्ड अप, इट रिप्रेजेंट्स द प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट पेड, इट रिप्रेजेंट्स allotment and call which is not paid, and it represents application. Next, अब हम forfeit करेंगे शेयर्स सेकेंड पर्सन के। लेट्स कंटिन्यू। उसके पास शेयर्स हैं 400 into 100 40,000। प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम उसने पे किया हुआ है। कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 400 into 50 20,000, और forfeiture में जो उसने पे किया है, इधर यू कैन टेक बैलेंसिंग फिगर और इट वुड बी 400 into 50 20,000। This represents Lakhan and this represents Paras। Now ये शेयर्स रीइश्यू किए गए। कितने रीइश्यू किए गए? The forfeited shares were reissued at 80 per share fully paid up। सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए गए हैं फुली पेड अप पे। एंट्री नंबर 8, 100 का शेयर 80 में 20 का लॉस। शेयर forfeiture to equity share capital। टोटल शेयर्स हैं 600 into 20। बेसिकली इसकी एंट्री आनी क्या चाहिए? बैंक शेयर forfeiture टू शेयर कैपिटल। आई रिपीट, बैंक शेयर forfeiture टू शेयर कैपिटल। पर बैंक कैश बुक वहां पर जाएगा कैश बुक में, इसलिए बैंक का जो 80 रुपीज है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 into 80 48,000। दैट्स इट। सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं। नाउ वी विल क्लोज द forfeiture एंट्री। दैट मीन्स वी नीड टू कंप्यूट forfeiture रीइश्यू का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व। द फॉर्मूला इज शेयर forfeiture क्रेडिट Lakhan 6,000, share forfeiture credit
Paras 20,000 minus share forfeiture debit. So share forfeiture credit, share forfeiture credit, share forfeiture debit. The net answer would be 26 minus 12, 34,000. The amount will be transferred to capital reserve. 26 minus 12, 14,000. The amount will be transferred to capital reserve. We are done with the sum. Let's close the cash book now. By balance carried out, balancing figure. Cash book means the generalized ledger. That means ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है. It means हमें कैश की एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करनी. 96,10,000. गिविंग यू 2 मिनट. पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और गो थ्रू कीजिए पूरे सभी एंट्रीज में. Speed up 1 more minute. So in lecture 16 we have done comprehensive, जिसमें हमने बैलेंस शीट कर ली थी, और इसमें हमने किया comprehensive with cash book. Tomorrow we'll continue with similar type of questions. Bye bye, take care, God bless.